Good morning, students. So today we are discussing the chapter, which is chapter 10, microbes in human welfare. So this is class 12th biology, and I am with you, Hemlata Yadav. And we are now proceeding, and we are starting a new chapter, which is microbes in human welfare. So there are few topics which are given on this slide, the first slide which I have shared to you. This is these are the microbes are useful in household products, microbes in industrial products, microbes in sewage treatment, and microbes in biogas production. Microbes as biocontrol agents and microbes as biofertilizers. So we can see six uses of microbes in human health welfare. Means microbes from the early times are used for household purposes. We were using microbes knowingly or unknowingly for preparing some food products. Like we know that from the time of Christ, the bread was used. We know that from the time of Lord Krishna, the curd, cheese, butter was used. So these products are the dairy products, and these are also the products which are prepared by the microbes. Like the bread. Bread is prepared by the yeast. Curd. Curd is prepared by the lactobacillus bacteria. You have studied in your junior classes. So what I'm telling you is that it is a very basic thing that we use microbes in our daily life. So हम microbes को अपनी daily lives में use करते हैं तरह तरह से और different तरह के microbes को use करते हैं जैसे कि household product में हम microbes को use कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं बायोगैस प्रोडक्शन में बायो कंट्रोल एजेंट्स में बायो फर्टिलाइजर्स में हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं तो हमारी क्लास आज उसी के बारे में होगी कि माइक्रोब्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं सब स्लाइड में उसके एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं and we will be proceeding towards the next slide various microbes this slide is giving you the diagram of bacteria which is rod shaped and magnified bacteria is shown here 1500 times it is magnified so it is written shown as you in the form of a shape particular shape you can see that there are rod like bacterias which are also having color basically bacterias or other every sample of the organism is colorless but when we provide stain to it हम जब उसे तरह तरह के स्टेनिंग प्रोसीजर से स्टेन करते हैं तब वो कलर हो जाता है उसके अंदर तो ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया को नीचे हम देखेंगे कि गोल शेप के बैक्टीरियाज हैं so the bacteria which are spherical we call them coccus bacteria and they are spherical shaped bacteria and the bacteria which are rod shaped we call them bacilli bacteria bacillus bacteria why they are fixed shape because they are having peptidoglycan cell wall हमने 11th में पढ़ा है मोनरा किंगडम में सेल वॉल होता है और सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है यहाँ रॉड शेप बैक्टीरिया एक और दिखा रखा है और इसमें आपको थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर इससे निकलते हुए दिख रहे हैं और बंच ऑफ थ्रेड निकल रहे हैं एक एंड पॉइंट से तो हम क्या बोल सकते हैं ये जो पीछे आपको दिख रहा है दिस दीज आर द बंच ऑफ फ्लैजिलास तो एक पर्टिकुलर टिप से उस पे बहुत सारे फ्लैजिला आ गए तो लोफोट्रोकस बैक्टीरिया ये है एंड लोफोट्राइकस ट्राइकस मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड लोफो मीन्स होता है ग्रुप so group of hair-like structures are coming bunch of flagella is coming so lophotrichus bacteria it is magnified 50,000 times it is magnified to view the flagella so हमें यहाँ दिख रहा है कि we can identify flagella by their shape we can identify the bacteria by their shape like rod coccus there are two more shapes comma shape and spiral and we can also distinguish the bacteria whether they are having flagella or not
नाउ वेरियस माइक्रोब्स में वायरसेस को हम एज अ पैथोजन लेते हैं, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। पर वायरसेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे आर also useful for the biotechnology industry. Why? Because there are DNA viruses, there are RNA viruses, and like you are looking at a slide जिसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिखा रखा है। हेड है, उसका कॉलर है और टेल है, देन बेस प्लेट है, प्लेट पे पिन्स हैं। तो this is the shape head. We have collar in the bacteriophage structure. We have tail, plate and pin, prongs, tail fibers को prongs भी कहते हैं। सो ये स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके हेड में देर इज अ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड इज अ देयर, एंड इट हैज हाई कॉपी नंबर। बैक्टीरियोफेजेस का कॉपी नंबर बहुत हाई होता है। किसी एक बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करते हैं और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिप्रोड्यूस इस अगर हमने इसके डीएनए में कुछ अपना यूजफुल डीएनए डाल दिया तो इट कैन बी मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स, एंड इसको हम एज अ वैक्सीन या कोई ऐसा सब यूनिट पेप्टाइड बनाने के काम में ले सकते हैं। इट कैन बी एक्ट एज अ वेक्टर। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में ये बैक्टीरिया ये वेक्टर की तरह यूज होते हैं। एडिनो वायरस है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। तो इनका एक इम्पोर्टेंस तो बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हो गया कि दे आर ऑल्सो कॉजिंग वेरियस डिजीजेस। तो इन्हीं के लिए इनसे प्रिवेंट करने के लिए ही वैक्सीन बनाए जाते हैं। जो रेस्पिरेटरी, अभी आपने कोरोना का नाम सुना, तो कोरोना वायरस कोविड-19, सो इसके लिए हमने वैक्सीन बनाई। रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरसेस, तो देर आर डिफरेंट शेप viruses also are in different shape, and they are can be classified on the basis of their shape, like we can say tadpole like structure or icosahedron। एडिनोवायरस का जो स्ट्रक्चर है वो आइकोसाहेड्रोन है, मतलब ट्राइंगुलर उसके अंदर सब यूनिट्स होती हैं कैप्सोमर्स की, और कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनता है। एंड रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो रहता है। अब इनको हमने बहुत लाख टाइम्स मैग्नीफाई किया है, 1 लाख to 1,50,000। Why? Because they need such magnification because they are submicroscopic. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब माइक्रोस्कोपिक मतलब वायरसेस और ज़्यादा छोटे हैं बैक्टीरिया से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, various microbes, colonies of bacteria growing in the petri dish, fungal colonies growing in a petri dish. So there are bacteria, if we grow them in the petri dish, they look like a if they are bacterial colonies, they look like a slimy dots। उनकी कॉलोनी ऐसे वाइटिश स्लाइमी डॉट्स की तरह लगती हैं, और एक एक कॉलोनी में देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया विच आर ग्रोइंग, सो दे बिकम विजिबल इन द फॉर्म ऑफ अ डॉट्स, वाइट डॉट्स। एंड इफ वी ग्रो फंगस इन पेट्री डिश, फंगस को अगर हम किसी न्यूट्रिएंट मीडिया का या जेल मीडियम दे देते हैं खाने का, तो फंगस कॉटनी मास की तरह ग्रो होती है, यानी कि उसके अंदर कॉटन की तरह रेशे होते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस तरह लैब में ग्रो होता है कोई भी माइक्रोब। हमें करना है पड़ता है, अगर हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, मान लो कोई फंगस है जो हमको बायो फर्टिलाइजर दे रही है, तो वी हैव टू ग्रो इट इन लार्ज अमाउंट। तो पहले हमें उसका मदर कल्चर बनाना पड़ेगा, तो वो तो हमें पहले स्मॉल स्केल पे बनाना पड़ेगा, देन उसको ही हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। तो माइक्रोब्स को अगर हमें यूज करना है तो वी शुड नो दैट हाउ टू कल्चर इट। कर्ड कैसे बनाते हैं ये सबको पता है। कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, एंड कर्ड में बैसिलस दैट इज रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं,
एंड इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस बिकॉज उसके अंदर विटामिन B12 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहती है। और हम मिल्क को कर्ड में बदलते हैं क्योंकि उसके अंदर हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाले, तो लैक्टिक एसिड बनता है और जो मिल्क होता है वो कर्ड में बदल जाता है, वो कोएगुलेट हो जाता है। दो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया ही बना रहे हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो मिल्क को का पीएच कम कर देते हैं। एंड लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। मिल्क प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर देते हैं। Fresh milk can be converted to curd by adding some curd containing LAB, which is also increases vitamin B12 that I was telling you. थोड़ा सा मिल्क अगर थोड़ा सा कर्ड अगर हम मिल्क में डाल देंगे, फ्रेश मिल्क में, तो वो क्या बन जाएगा, बिकम्स कर्ड। स्टमक में LAB जो होता है वो पैथोजेंस की भी, अगर LAB की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो हार्मफुल बैक्टीरियाज कम हमारे स्टमक को क्या करेंगे, कॉलोनाइज करेंगे। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। अगर हम दही खाते हैं तो हमारी जो नेचुरल फ्लोरा है बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहती है। अब नेक्स्ट हमें दिख रहा है एक डिश है, ये आप जानते हैं इस डिश को, वेरी कॉमन, इडली एंड डोसा। एंड that it is produced by the when the dough of the black gram and the rice, when the slurry of black ground and rice, when we mix it and when we have a that slurry batter, जिसको हम बैटर बोलते हैं, तो उसको बैक्टीरियल फर्मेंटेशन उसका करवाया जाता है। जब बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है उसको डो को, डोसा और इडली के, उसको ल्यूकोनोस्टॉक नाम का बैक्टीरिया फर्मेंट कर देता है, और तब वो थोड़ा सा क्या होता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन होने की वजह से वो बैटर थोड़ा फ्लफी हो जाता है। और जब उसको तवे पर करा जाता है, उसको एक पेस्ट की तरह, तब वो हमें डोसा बनके तैयार होता है। ल्यूकोनोस्टॉक उस बैक्टीरिया का नाम है, तो हमको ये देखना है ल्यूकोनोस्टॉक। सो ल्यूकोनोस्टॉक आपको याद रखना पड़ेगा। हम पफ्ड अप अपीयरेंस होती है डो की, एंड बिकॉज ल्यूकोनोस्टॉक ने उसको क्या किया है, फर्मेंट किया है। इजी टू डाइजेस्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी वो क्या हो गया है, बैक्टीरिया की वजह से डाइजेस्ट हो गया। एंड अगर हम यही चीज ब्रेड के लिए देखें तो हम जो ब्रेड का के लिए जो हम डो प्रिपेयर करेंगे, अगर उसमें हमने यीस्ट डाल दी, उधर तो बैक्टीरिया था, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन थी इडली डोसा में। पर अगर हम ब्रेड बना रहे हैं तो किसकी फर्मेंटेशन होगी, देन इट इज डन बाय द यीस्ट, बेकर्स यीस्ट। आपको पता है ये बहुत कॉमन है, ब्रेड सब खाया जाता है घर में आम ब्रेकफास्ट के रूप में। एंड यीस्ट से ये फर्मेंट किया जाता है। यीस्ट के थोड़ा पाउडर हम डो के बनाते वक्त रख देते हैं, एंड देन हम उसको छोड़ देते हैं कुछ एक घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए। तो उसमें क्या होता है, वो यीस्ट उसको पूरा डाइजेस्ट करती है। उसमें एंजाइम्स होती हैं, यीस्ट की एंजाइम्स एक्ट करती हैं, CO2 प्रोड्यूस होती है और डो फूल जाता है। तो इस तरह से हमारा प्रिपेयर होता है ब्रेड के लिए, CO2 उसमें भर जाती है। And then we cut them in slices, we bake it, and we get the bread. And yeast is baker yeast, Saccharomyces cerevisiae is the name. ये जो है फंगस है सैक्रोमाइसिस, इसके यूज से इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो। तो डो जो होता है उसको फर्मेंट करने से हमें ब्रेड मिलता है। Then we move toward microbes in household products. Other products which are produced is palm जो है, देन पाम के पेड़ पे जो कोकोनट मिलते हैं, पाम के जो फ्रूट्स मिलते हैं, उनको अगर हम फर्मेंट करें और उनको फर्मेंट करके अगर हमको एक उनका जो रस होता है उनको फर्मेंट करके हमको टोडी नाम का एक बेवरेज मिलता है, जो कि नेचुरल बेवरेज है और हाउस होल्ड बेवरेज है, जो कि साउथ इंडिया में प्रिपेयर किया जाता है।
So toddy is made by the fermenting sap from palm. Palm के sap से हमें वो मिलता है. And microbes are used to ferment fish, soybean and bamboo shoots and to produce cheeses. तो माइक्रोब्स को यूज किया जाता है ताकि वो क्या फिशेस को फर्मेंट करें, वो बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करें और तब उससे क्या बन सकती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं. फर्मेंटेड सोयाबीन्स भी फर्मेंट हो जाती हैं और फिर उनसे भी प्रोडक्ट्स बनते हैं. माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, स्विस चीज. चीज आपको आपने देखी है, चीज आपने खाई हुई है, ये बटर होती हैं और इनको भी माइक्रोब्स इनको तैयार करते हैं. इनके अंदर होल्स होते हैं एंड दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर because of the type of microbe which is fermenting the cheese. And like you can see two images of the cheese here, Swiss cheese, Roquefort cheese. And there are large holes in the Swiss cheese because of the CO2 production. And the bacterium which is used for producing Swiss cheese is Propionibacterium bacterium shamani. A bacteria is used for this. And Roquefort cheese is produced by the ripened by the growing of fungus Penicillium roqueforti. तो ये फंगस इसको क्या करती है, द फंगस is fermenting the cheese and giving it a characteristic flavor, we can say texture. These are the examples of two of the organisms जो चीज प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ये आपको दिख रहा है कि इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम. And Penicillium roqueforti, you can see the fungal structure here. Microscopic image is also shown. Now coming to alcohol beverages or breweries, and here you can see the microbes in industrial productions. And most common production is the alcohol production of beverages, antibiotics, etc. on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters. तो लार्ज स्केल पे अगर हमें माइक्रोब्स को वी वांट टू गेट प्रोडक्ट्स, then we will be using the फर्मेंटर इंस्ट्रूमेंट. हम फर्मेंटर का नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. बहुत बड़ा वेसल होता है, इससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना सकते हैं. एंड इसमें हम माइक्रोब को ग्रो कराते हैं ऑन द कल्चर मीडियम. उसे कुछ न्यूट्रिशनल कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं और उस पर वो माइक्रोब ग्रो करता है, वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है. और इस तरह से हमको बेवरेज चाहिए तो बेवरेज, अगर हमने ईस्ट को ग्रो किया है तो मोलासेस पे या किसी कार्बोहाइड्रेट रिच शुगर रिच मटेरियल पे, तो वो उसको बेवरेज में कन्वर्ट करेगा. और अगर हमने उसे स्पेशल कोई न्यूट्रिएंट मीडियम दिया है और हम कोई फंगल जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस या फिर पेनिसिलियम हम ग्रो कर रहे हैं ताकि हमें पेनिसिलिन मिले, तो हमें एंटीबायोटिक मिलेगी. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ माइक्रोब यू गिव एज अ कल्चर, एंड कौन सा माइक्रोब आप ग्रो कर रहे हो, क्या आप सबस्ट्रेट दे रहे हो, आपको पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है इंडस्ट्रियल स्केल पे. होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन. So microbes in industrial products, fermented beverage. So कैसे हम बेवरेज बनाते हैं उसका एक शॉर्ट आपको आइडिया दिया हुआ है कि माल्टेड सीरियल्स हैं, या आप देख रहे हैं. देयर आर सीड्स विच आर germinated and which are dried, then they are called malted seeds. And now the yeast culture will be the fungal culture, this is unicellular fungus, will be added on this malted cereals for fermentation.
Later we get what? We get alcohol. If we if we instead of using this malted cereal, if we use grapes, अब ग्रेप्स यूज होएगा, अगर माल्टेड सीरियल जौ की जगह अगर ग्रेप्स यूज होएगा तो फिर वी गेट वाइन. नाउ Saccharomyces cerevisiae brewer yeast malted cereals और fruit juices से क्या बनाती है? इथेनॉल बनाती है. वाइन और बियर बनती है विदाउट डिस्टिलेशन. अगर इनकी डिस्टिलेशन हो जाएगी तो ये थोड़ी सी मोर स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बन जाती है, बिकॉज इनमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाता है. जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, अरक, ये डिस्टिलेशन से बनती हैं फर्मेंटेड ब्रॉथ के. सो आई होप आपको यहाँ पर दो चीज याद रखनी है. सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज हो रही है, माल्टेड सीरियल्स यूज हो रहे हैं, फ्रूट जूसेस यूज हो रहे हैं for fermentation, and the product we are getting is ethanol. Now antibiotics we will be doing in the next class. I hope आपको चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. इसके बाद हमें एंटीबायोटिक्स पढ़नी है, और पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, वो हमें देखना है. देन हम बाकी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में. And then we have to see in the agriculture that how in agriculture also microbes are used. So we will be meeting in our next class of class 12 biology. Till then you have to uh, read from your NCRT this chapter, and try to get some concepts and try to have any, if you face any doubt, you are welcome to clear them. Thank you. So I am ending the session.